टेक्निकली आप ऐसा माइंडसेट बनाओ कि अगर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई पॉइंट ही नहीं था ना। अगर वो इंटरव्यू में भी आ ही जाता, तो मैं उसको तब भी कर ही देता। अगर मैं उसको नहीं सॉल्व कर पाया, तो यही तो चाहिए था यार मुझे। अगर आप जिस भी लेवल पे हो, आप 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 2 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 1 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आप सॉल्विंग इज़ द की। तो फिर लीड को स्टार्ट कर दिया। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती थी, कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बनते थे, रेटिंग्स गिरते जाती थी। बट इवेंचुअली वही ये सबके फेस तो ये वाला तो आएगा, उस पे कॉप अप करना पड़ता। फ्रेंड से बात करी, सीनियर से बात करी, सर कैसे करना है? थोड़ा खुद से रिसर्च करी, प्रॉब्लम्स खुद समझी कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। So, hi everyone. Today we have a special guest on our channel. We have Amul with us. Amul, would you like to introduce yourself once? Hi everyone, I am Amul. I am currently pursuing my Bachelor's of Technology from Triple IT Allahabad, and as of now, I am working as a software developer intern at Zomato. And for those who are familiar with the world of competitive programming, I am an expert at Code Forces. And for DSA guys, I am a guardian at Lead Code with rating around 2200. I don't remember actually, but I was in the top 0.8% of coders at Lead Code the last time when I checked. Nice, nice, nice. So, like you guys can see, he's pretty good at coding, and apart from that, he has also cracked a pretty good company, which is Zomato. So, he's cracked intern plus FT basically, right? So, in this video, we'll be getting to know his entire journey of cracking Zomato, his coding journey, his interview experience, and everything in between. So, Amul, would you like to start us off with your interview experience at Zomato? Like, what all happened? How did it go? Yeah, so basically the interview procedure was of 4 rounds. First round was online assessment, which had 3 DSA problems and pretty weird, but 9 MCQs. And those were CS fundamental MCQs. And the DSA problems was like one medium question and 2 hard questions. I was able to solve 2.7, और फिर एक मैंने ऐसे टेस्ट केस थोड़ा इफ एल्स लगा के पास करवा दिया था जैसे तैसे, पर उसको कुछ करके पास करवा दिया था। सो या, एंड आफ्टर दैट दे शॉर्टलिस्टेड 17 स्टूडेंट्स। देन माय फर्स्ट राउंड वाज टेक्निकल राउंड। There they asked me three DSA problem. All three of them were, uh, I might say, medium hard, and the last one was entirely hard. All three of them was from graph topic, and they grind me a lot on my resume. Like जो भी वर्ड लिखा है रेज्यूमे में उस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ भी। कुछ भी ऐसा हो कि जिसको तुम डिफेंड नहीं कर पाओ। एक एक वर्ड जो भी लिखा है उस पे पूछ रहे हैं। फिर दे मूव टू माय प्रोजेक्ट्स, क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या थॉट प्रोसेस थी, क्या प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ। देन दे आस्क्ड मी CS fundamentals. So that round was of around like 1 hour 20 minutes. And after that, they were like, okay, we are pretty satisfied with your interview. And they gave me tips like, कि you type really fast, and speed अच्छी है, blah, blah, blah. And I'm sending your name to second round. Then second round, again, technical round. There they asked me kind of 4 problems on DSA, but they are not entirely independent problems. They are just the follow up of the first problem. But the one thing that I like about Zomato, that the question that they asked in the second round was the standard DSA problem from Striver sheet. Uh, but they didn't frame that question like it is the standard question. They gave me a scenario of the Zomato warehouses. We have this problem, and we are currently facing this. So how would you approach this problem? So eventually we try to end up solving that. I told him a approach in the last follow up, the hardest one. I solved it using line sweep, and he was like, I thought कि भाई इन्होंने पहली बार सुना है ये वाला, तो उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर। हाँ, was impressed with I can understand that line sweep algorithm. Not a lot of people in DSA know, right? I yes. can understand that. So he Uh, was impressed with and the moment I told that approach and he gave me test cases, I dry run them on my code. I was like, he just shut down his laptop. कि ठीक है भाई, ये से तो हो गया। हो गया. हाँ, That is enough. again, grind me over resume, CS fundamentals. And one thing that I noticed about Zomato is
they asked a lot of questions on computer networks. Usually, companies focuses on OOPS, DBMS, and you know what, OS, but they asked me computer networks as well. Then they gave me some behavioral rounds कि तुम MNCs के ऊपर हमें क्यों चूज कर रहे हो, ये वो वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या कि तुमको लर्निंग एबिलिटीज चाहिए, क्या चाहिए चीजें। देन उसके बाद उसमें भी सिलेक्ट हुआ था, और जो बस उस राउंड में आई वाज रियली स्केर्ड बिकॉज द पर्सन हु टुक माय सेकंड राउंड, ही बिफोर मी, ही इंटरव्यूड 4 कैंडिडेट एंड ही रिजेक्टेड ऑल 4 ऑफ देम। So I was like कि भाई अब देखते हैं जो है यही है। But after like 30 minutes he's like, oh okay, you will be interviewing by HR after 20 minutes. So I was like ठीक है भाई, HR हो गया। फिर उसके बाद लास्ट राउंड they interviewed 5 students for the HR round. They selected 5 students and they gave offer to all 5 of them. HR round was like kind of formality कि ठीक है ये, they told me about the work culture and stuff, and that's Hmm. that's pretty much it. Mm-hmm. Nice, man. Nice. So, that's pretty interesting interview experience. And as far as I can see, काफी DSA heavy था, है ना? मतलब DSA के ऊपर हाँ ज़्यादा dominant था. So let's talk about your DSA preparation because you performed really well in the DSA interviews. And generally हम देखते हैं कि hard problems लोग interview में नहीं कर पाते हैं. Medium problems लोग फिर भी कर लेते हैं. Hard problems में people have a little bit of difficulty, right? So what was your preparation like कि you were able to perform this well? So यार basically my preparation started in the first semester itself कि मतलब ये टेक्निकली तो जेई के बाद से ही मैंने और मेरा एक फ्रेंड था स्कूल का, उसका स्टार्ट कर दिया था कि भाई एक अच्छी इंजीनियरिंग करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है तो देखते हैं। तो फिर हमको वहां से पता चला कि भाई डीएसए करके कुछ है, सब लोग करते हैं और उससे मिल जाती है। तो उसने बताया, बोले भाई ऐसे ऐसे करना है। धीरे धीरे जब थोड़ा और देखा तो बोला यार डीएसए तो ठीक है, पर डीएसए को मास्टर करने के लिए कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नाम की चीज होती है, उसको करते हैं। उस हिसाब से बोले ठीक है, उसको स्टार्ट करें। डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज ज्वाइन करी, थोड़ा देखा, वहां से हमको एसटीएल के बारे में पता चला। फिर मेरे कॉलेज के ही एलुमनाई लव सर, उनकी पूरी एसटीएल की शीट, सॉरी एसटीएल की प्लेलिस्ट देख ली, पूरा एसटीएल सीख लिया, नोट्स बना लिए, प्रॉपर स्टार्ट करने लगे। और फिर यार हमारे कॉलेज में भी मतलब पूरा कल्चर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला ही था। तो कॉलेज में जाते सब लोग करते थे तो कुछ वो प्रॉब्लम थी नहीं, हम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जाते ही स्टार्ट कर दिया। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होते थे। तो बेसिकली यार मैंने काफ़ी कॉम्पिटिटिव सीपी ज़्यादा करी। डीए से मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। लाइक जब मेरा इंटर्न सीजन स्टार्ट हो रहा था 2023 में, उसके 1 सेमेस्टर पहले ही मैंने स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं प्योरली सीपी पे ही फ़ोकस करता था। उसके लिए मैंने क्या बोलते हैं, ए टू ओजे लैडर काफ़ी करी थी। ब्रूट फोर्सेस पे काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, कॉन्टेस्ट देता था। और फिर जब वो हुआ कि ठीक है, अब जो सीखना था, खुद के उससे करना था, कर लिया, पर अब थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक पढ़ाई करते कि ठीक है, जॉब चाहिए, मेन टारगेट तो वही था। फिर गए भैया लीड कोड पे, अकाउंट बना लिया, सब स्टार्ट कर दिया। डीएसए शीट्स फॉलो करना स्टार्ट कर लिया था मैंने। शीट्स में मैंने स्ट्राइवर सर की ही शीट करी थी, 480 क्वेश्चंस वाली जो बड़ी वाली शीट है, कर दी थी। लीड कोड पे कंटिन्यूअसली कॉन्टेस्ट देते थे। इंटरव्यू बिट काफ़ी मतलब सीनियर्स ने रिकमेंड किया था कि, और टेक्निकली वो सही भी है क्योंकि लीड कोड यार अगर तुम 3rd ईयर और 2nd ईयर एंड में हो, 3rd ईयर में हो, तो फिर लीड कोड करना इतना सेंस बनाता नहीं है क्योंकि लीड कोड पे लाइक थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस है एंड यू कैन नॉट जस्ट सॉल्व देम। और उससे तुम और परेशान हो रहे कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। बट इंटरव्यू बिट पे बहुत सही चीज़, कंसाइज़ चीज़ें हैं। तो या आई वुड रिकमेंड सॉल्विंग लीड कोड। तो फिर लीड कोड स्टार्ट कर दिया। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती थी, कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बनते थे, रेटिंग्स गिरते जाती थी। बट इवेंचुअली वही, ये सबके फेस तो ये वाला तो आएगा, उस पे कॉप अप करना पड़ता। फ्रेंड से बात करी, सीनियर से बात करी, सर कैसे करना है, थोड़ा खुद से रिसर्च करी, प्रॉब्लम्स खुद समझी कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। उससे फिर चलते गए प्रॉब्लम। इवेंचुअली इंटर्न सीजन स्टार्ट हुआ। फिर इंटर्न्स में सारे राउंड्स में, इंटर्न्स में लाइक कि 4-5 कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुआ था। डीएस राउंड तो सबका ही निकल जाता था। इंटरव्यूज मेरे पास ऑफ कैंपस भी इंक्लूड करके 4-5 कंपनीज आए थे, मैं सब में से रिजेक्ट हो गया था क्योंकि प्रोजेक्ट वाले केस में मैं बिल्कुल जीरो था।
मैंने बस डीएसए डीएसए ही कर दिया था। जो सीपी वालों का होता है हमेशा केस, है ना? प्रोजेक्ट में मतलब जो कॉलेज में एकेडमिक्स वाले प्रोजेक्ट थे वही मैंने डाल दिए थे, वो भी एकेडमिक्स, पता है कैसे ही बनाते हो, वो पूछ ली, फिर उस पर रिजेक्ट होता है। फिर देन आई रियलाइज कि यार इट इज नॉट 2021 एंड 2022 की बस वी हैव टू डू सम डीएसए प्रीटी एट डिसेंट लेवल तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं। देन आई रियलाइज कि यार we have to do projects as well because things has changed. फिर right after that I started with MERN, सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए, एसक्यूएल पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पजल्स पढ़ना स्टार्ट कर दी, सब कुछ। और इवेंचुअली फिर प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ, जोमेटो डे 1 कंपनी थी, फिर डे 0 ही थी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। Nice, 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 man. So you explained everything very well. Thoda sa I want to know more about, let's say, in your problem-solving journey only. So, as you started CP, you started like lead code and all. So one thing I've noticed कि जैसे I suggest everyone to start CP, है ना? Like I feel everyone who is in college should start CP. लेकिन एक इशू होता है, लोग को स्टार्ट कर देते हैं सीपी या चाहे लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देना, फिर उनसे कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम्स नहीं बनते हैं, एंड एक प्रॉब्लम बन जा रहा है लेकिन फिर दूसरा प्रॉब्लम जो नया है वो नहीं बन रहा है, बनने वाले बन जा रहे हैं, नए वाले नहीं बन रहे हैं। तो पीपल फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स लाइक दिस, सो आई जस्ट वांट टू नो हाउ डिड यू ओवरकम दो स्ट्रगल्स, क्योंकि यू वुड हैव आल्सो फेस देम, राइट? सो हाउ Yes. डिड यू ओवरकम देम? So anyone who is facing the same problem, you are not alone यार। हर कोई यही फेस करता है, मैंने भी ये फेस करी, मेरे सीनियर्स ने भी, मेरे जूनियर्स भी फेस करेंगे। तो ये चीज़ होती है। और टेक्निकली आप ऐसा माइंडसेट बनाओ कि अगर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई पॉइंट ही नहीं था ना। अगर वो इंटरव्यू में भी आ ही जाता, तो मैं उसको तब भी कर ही देता। अगर मैं उसको नहीं सॉल्व कर पाया, तो यही तो चाहिए था यार मुझे। अगर आप जिस भी लेवल पे हो, आप 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 2 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 1 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आप सॉल्विंग इज़ द की। सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और दैट्स व्हाट आई डिड। जितने भी क्वेश्चन करता था, 2 करना, स्टार्टिंग में 1 होता था, फिर 2 होने लगे, 3 होने लगे, जो भी तुम कर रहे हो, उसके बाद का 1 या एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो करो ही, अब सॉल्व उसे करो ही। तुम ट्यूटोरियल देखो या खुद ट्राई करो, एडिटोरियल देखो, यूट्यूब वीडियोज़ देखो, किसी से पूछो, कुछ भी करो, बट वही वही पॉइंट है कॉन्टेस्ट देने का। रेटिंग बढ़ाना तो यार, रेटिंग तो बढ़ ही जाएगी, वो कैसे भी बढ़ ही जाएगी। Upsolving is the key. So please focus on upsolving. Same for the lead code. And one more thing that I would like to tell कि अगर कंपनी स्पेसिफिक हम मतलब ऑब्वियसली एंड गोल तो यही है ना कि हमको ओए क्लियर करना है, राइट? तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग टू स्टडी योर टॉपिक, कि किसी टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हो कि बस ये टॉपिक अभी नया पढ़ा है, लाइक मैंने सेगमेंटरी पढ़ा है, तो मेरे को उसके 2-3 सवाल करने हैं, तो उसमें तुम ठीक है, कर लो टाइम लेके। पर अगर तुम एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो प्लीज़ हैव अ टाइमर बाय योर साइड। टाइमर स्टार्ट कर ही दो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना प्रेशर में ही प्रॉब्लम आती है। बहुत बार होता है कि बच्चे बोलते हैं, अरे सर ये कांसेप्ट आता था, ये आता था, पर कॉन्टेस्ट में नहीं कर पाया, ओए में नहीं कर पाया। वही तो काम है ना यार। ओए में वो तुमको 2 दिन नहीं देंगे ना, तुम्हारे पास 1 डेढ़ घंटा रहेगा, उसमें तुमको क्वेश्चन बनाना है। अब तुमको आता हो या नहीं आता हो मैटर नहीं करता ना। तो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली लाइक दिस, कि सामने टाइम चलते रहेगा, वो दैट्स व्हाट कॉन्टेस्ट गिव अस। तुमने पूरा कोड कर लिया है, तुमने उसे सबमिट भी कर दिया है, पर रॉन्ग आ गया। अगर तुम उसको डीप नहीं कर पाए, तुम नहीं ढूँढ पाए कि ये क्यों गलत आ रहा है, तो वो कोई मैटर ही नहीं करता है। वो तुम्हारी वो नेगेटिव बढ़ा दिया उसने, एक रॉन्ग सबमिशन इंक्रीज़ कर दिया। और जब वो टाइमर चलता है, तो प्रेशर में परफॉर्म करना, दैट्स व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो हाइली रिकमेंड यार। करेक्ट, करेक्ट। इनफैक्ट जितना यू आर फेसिंग इन अ कॉन्टेस्ट इट इज स्टिल फ्रेंडली, इंटरव्यू में उससे ज्यादा ही प्रेशर होने वाला है ना? इंटरव्यू में यू विल नॉट हैव कि आराम से बेड पे लैपटॉप खोल के लीड कोड प्रॉब्लम कर रहे हो, आराम से 1 घंटा बीच में रील चला रहे हो, वो वाले से नहीं हो पाता। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना कॉन्टेस्ट दिए तो कुछ होने नहीं वाला। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू रिआइट्रेट व्हाट यू सेड, कि दिस इज अ वेरी ग्रेट माइंडसेट टू लुक एट इट। जो प्रॉब्लम आपसे हो ही जा रहे हैं, यू नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इट, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में भी कर ही लोगे। जहां नहीं हो रहा है, जहां स्ट्रगल कर रहे हो, दैट्स वेयर द लर्निंग इज कमिंग फ्रॉम, है ना? ये तो यू शुड बी हैप्पी अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एज लॉन्ग एज इट डजंट हैपन टू मच। यू शुड बी हैप्पी कि एटलीस्ट यू आर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, यू आर स्टिल बिल्डिंग इंट्यूशन, but make sure that you upsolve, right? ये So that is very important.
Right. So, like, you've talked about your problem solving, and you mentioned ki you were a bit behind in projects, which happens to all CP guys. It was the case with me also. So, how did you manage that? Like, let's say, how did you balance that out in the next 6 months? Ki projects maybe या dev में भी अच्छे हो गए. So the main thing is you have to be smart. And by smart, I don't mean कि you have to be good at coding or तुम्हें दिमाग अच्छा होना चाहिए तुम्हारे problem solving. You should accept things कि तुमने ठीक है मैंने काफ़ी डीएसए करा था, बच्चों की ऐसे की इंटर्न्स भी लगी जिन्होंने कम लेवल का किया था, तो you have to accept the things कि यार प्लीज़ को क्या चाहिए? वो तुम्हें उस बेसिस पे जज नहीं करेंगे जिसमें तुम अच्छे हो। दे विल जज ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो एक्सेप्ट किया ठीक है, नहीं लगा जॉब नहीं लगी इंटर्नशिप, अब जिस चीज़ से नहीं लगी, जो प्रॉब्लम्स आई, वो उसको उस पे काम करूँगा। सो आई बेसिकली स्टार्टेड समझ गया था कि यार प्रोजेक्ट्स में ही लैग कर रहे हैं। थोड़ा सीनियर्स से बात करी जो डेव वाली साइड पे सीनियर्स थे, सीपी वाले नहीं। उनको बोला कि सर ठीक है, डेव मतलब सीपी वाले से ही बात करी कि सर आप लोगों ने कैसे किया था? उन्होंने बोला यार हमारे टाइम तो प्रोजेक्ट्स इसने पूछे ही नहीं, तो वो उनको करना ही। Then I started a course on YouTube. It was MERN course, basically Node course. So उससे मैंने थोड़ा नोड के बारे में देखा, कैसे काम करती है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट वो सब। मैं मतलब सब्जेक्ट्स पढ़ता था, मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता था। सी एन ओ एस सीपीएमएस। तो जब मैंने देखा मैंने यार ये तो सीएन वाली ही चीजें ही हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है, एपीआई ये सब, तो मुझे वो भी अच्छा लगने लगा। देन आई मेड सम प्रोजेक्ट्स बाय फॉलोइंग दोस ट्यूटोरियल्स। पर ऐसा नहीं कि बस उसके ही सेम प्रोजेक्ट्स बना दिए। अपने हिसाब से थोड़े चेंजेस करके जो जो मुझे समझ आया, जो मुझे रिक्वायरमेंट लगी, वो प्रोजेक्ट्स बनाए और उन्हें डिप्लॉय करा। डिप्लॉयमेंट इज हाईली रिकमेंडेड यार। तुम डिप्लॉय करो क्योंकि दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ कि हाँ मैंने बनाया है। अगर डिप्लॉय नहीं होगा तो इंटरव्यू को भी लगता है कि यार ठीक है, वो क्लोन करते हैं, गिटहब से बना लिया है, कुछ भी या जो भी डाउट्स आते हैं। सो जस्ट बी रियल। और रिज्यूमे में भी यार, रिज्यूमे बनाते टाइम भी कि मतलब चीज़ें वही लिखो जो एक्चुअल है। मैं मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि बिल्कुल ज़ीरो ही लिख दो। तुम अपने रिज्यूमे से अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हो। लाइक लोग मतलब मैंने ऐसा भी केसेस देखे कि बोलते हैं कि यार एक दूसरे की आईडी डाल दो एक्सपर्ट की। उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारे रिज्यूमे से तो हमको जॉब थोड़ी मिलेगा, तुम्हें इंटरव्यू कॉल आएगा ना। तुमने ऑलरेडी एक्सपर्ट या मास्टर या कुछ लिख के रखा है, तो तुम्हारा इंटरव्यू भी उसी लेवल से लेंगे ना। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके बाद तुम रिजेक्ट हो जाओगे। सो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लेम चीज़ें ही लिख दो कि बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन हो जाए उनसे। जस्ट कीप अ बैलेंस कि हाँ, शॉर्टलिस्ट भी हो जाए रिज़्यूमे और उसके बाद इंटरव्यू में भी उनकी एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से रहे। Hmm. Right, right, right. That's nice. That's some great advice right there. मतलब वो तो है. Like you said, you have to be smart about it. एक चीज even if you're liking, it doesn't matter कि it's not like कि उसी से पूछेंगे है ना. If you're liking DSCP, भले ही बहुत अच्छे हो उसमें. We have seen so many people जो master है code forces में and they have bombed interviews because they couldn't do a simple JavaScript code है ना. तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा. No matter how much you like one thing, you'll have to do the other because that's what the companies want. They will not take interview on your liking, right? So that is totally correct. All right, so we've discussed about development, we've discussed about problem solving, pretty much everything about your journey. So let's say on a final note to all of the people who are watching this video, उनको भी एक अच्छा पैकेज चाहिए एक अच्छी कंपनी में, like Zomato. So what advice would you like to give them? इसमें तो यार देखो, तुम्हारी एडवाइस उस चीज़ पे डिपेंड करती है तुम किस स्टेट में हो अभी। इफ़ यू आर इन द फर्स्ट ईयर और जस्ट स्टार्टिंग विद थिंग्स, तो और तुम्हें कोई प्रायर इंटरेस्ट नहीं है कि इफ़ यू हैव वेबडी इंटरेस्ट या एफडी में कोई है या एमएल मशीन लर्निंग में जो भी करना है, इफ़ यू हैव पर्सनल इंटरेस्ट देन गो फॉर इट। पैरेलली डीएसए लीड को स्टार्ट कर दो क्योंकि डीएसए में यार कोई ऑप्शन इफ एंड बट है ही नहीं। तुम सीपी तुम्हें अगर पसंद है तुम करोगे, नहीं पसंद है नहीं करोगे, बट डीएसए इज समथिंग कि करना ही है वो। तो उसमें जस्ट डोंट क्वेश्चन ऑन दोस थिंग्स। स्टार्ट विद एनी लैंग्वेज, डोंट वेस्ट टाइम कि जावा से करूँ, पाइथन से करूँ, सी प्लस प्लस से करूँ, जिससे भी करना है करो। इस सबसे टाइम में अगर गलत लैंग्वेज भी स्टार्ट करी, 1 महीना उससे करके स्विच कर लो भाई। 1 महीना उस पे वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम कांसेप्ट्स तो सीखे ना, लैंग्वेज चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात कि मैं तो यार हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक बार सीपी तो ट्राई करो। तुमको पसंद आए, कंटिन्यू करो, नहीं आए छोड़ दो, दूसरी चीज़ करो। पर अगर नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि जेईई में अच्छी रैंक आ गई, हाँ, सब बच्चे सीएस ले रहे हैं, मैंने भी सीएस ले लिया।
कुछ प्रायर इंटरेस्ट नहीं था, तो अब क्या करना है? बच्चे उधर आके ब्लैंक हो जाते हैं, अब क्या? तो चुपचाप सीपी स्टार्ट कर दो, डीए से पैरेलली करते रहो, फिर उसके बाद पैरेलली एक्सप्लोर तो कर ही रहो, वेब डी, ऐप डी, जिसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आए, वो चीज़ कर लो, क्योंकि अगेन आई हैव मेंशन कि यार ये मतलब कोविड वाला टाइम नहीं है कि कंपनीज़ आर हायरिंग सो मच कि कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत भी आ जाएगा। यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग बेस्ट एट एवरीथिंग, बट कीप बैलेंस बिटवीन द थिंग्स। और वही सीजीपीए भी बहुत मैटर करती है, देखो। बहुत लोग बोलते हैं कि गुड कोडिंग स्किल्स बढ़ाओ, कोडिंग स्किल्स बढ़ाओ। ठीक है, होता है। मैंने खुद कॉलेज में देखा, मेरे फ्रेंड्स जो काफ़ी अच्छे मेरे साथ कोडिंग करते थे, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनीज़ बैरियर लगा देती है यार 8, 8.5 का। वो तुम्हें अपेयर ही नहीं होने देगी, तुम शो ही नहीं कर पाओगे तुम कितने अच्छे हो कोडिंग में। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखो, हर चीज़ को पैरेलली करो। सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं, कंपनी सब्जेक्ट्स पूछती है, स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग ज़ोमैटो, वो तो बहुत ज़्यादा पूछती है। सब्जेक्ट पे फोकस कर रही है। अ, दैट्स प्रीटी मच यार। और बाकी डरने की कोई बात ही नहीं है, सब बढ़िया है। एआई वेआई, चैट जीपीटी तो यार ठीक है, वो सब आ रहा है। वो इट्स माय चैट जीपीटी से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। द क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएटिंग एन इंजीनियर विल चेंज, राइट? तो उस चीज़ के पीछे नहीं, तुम अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करो कि हाँ, ठीक है, वो आ रहा है तो उसके हेल्प से तुम अपने आप को कितना इम्प्रूव कर सकते हो, वो करो, उस पे डिपेंड मत हो। दैट्स इट। और बाकी सब बेकार चीज़ें हैं, जस्ट वर्क हार्ड, गो फॉर इट एंड हो जाएगा भाई सब। Hmm. Nice, nice, nice. That's some wonderful advice right there that you can take away from this podcast. And if anyone still have any doubt, then I'll give his LinkedIn in the description. You guys can follow him from there and connect with him from there. So I think that covers pretty much everything about the tips and Amul's journey to cracking Zomato. So thanks a lot, Amul, for coming on my channel and sharing your journey. I really hope this helps a lot of students. So yeah, thank you. Thank you, Ashish. Thank you for having me here. It's great to have a great conversation with you. Thank you.